Welcome student. I will start the video with a quotation of Dr. APJ Abdul Kalam. It's 27th July today and it's the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. He is my idol. In fact, it's not just my idol. He is the idol of the dunya. It's a complete world's idol. So one of his, I used to go through his quotation every day. So one of his quotation which I like the most is something like this, that if an external force is applied to an egg, life ends. मतलब हम egg को फोड़ सकते हैं external force apply करके, but if an internal force is applied on the egg, life begins. That means जो hen hatch करती है egg को, तो ऑब्वियसली वो एक चिकन में कन्वर्ट होता है, तो जो शुरुआत कर रहता है पपी एंड देन चिकन में कन्वर्ट होता है. तो दैट मीन्स द मॉरल ऑफ दिस कोटेशन इज नथिंग बट ग्रेट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड. ठीक है, सो ग्रेट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड. सो once again I am starting the topic today with the boosting for you guys that just tie your shoes lace and start working on the remaining days, whichever you have, close to 50 days with my expectation for MST CET from today, that is 27th of July, because that is expected to be in that range only. 3rd October is the declared date for JEE Advanced, which has come in a day, in last 2 days compared to the last video which I sent across the date of my MST CET. So the perfect slot which they are getting, that is CET sale, is from 12th of September, that is of NEET date, and the 2nd of October, 3rd of October, that is JEE Advanced date. So that is the perfect window of 20 days which they require is there. So you have close to 50 days, because again it depends on you guys that which particular slot you have. It's not necessary that suppose the first day of CET is of 13th of September, so it's not necessary that you will get on 13th, you will get 17, 18, etc. Fine. Okay, great. So let us start with the MSCET math strategy. MSCET math strategy. So I have worked very hard to come up with this particular case, that's why it may take a little longer time. I was busy in some other stuff also, but anyway, so let us start. This is something the working of last 5 years paper of MST CET. I will also give you the brief of 2020 in the next video, but this is of last 5 years MST CET. Fine. One could have a little bias approach here, because see 11th is coming in CET from last 3 session only, like 11 standard 20% and 80% is of 12. So here you will get a little less case, but it is an average. Basically it is an average. In that case it is an average. So fine. So in total you have 15 topics of mathematics, and let us see the weightage of each topic. See, I am again saying, just keep it in mind for this 2021 student, and most probably not sure, for 2022 student the syllabus will be reduced. So 2021 is a reduced syllabus undoubtedly, but for 2022 is expected they may give news as per their desire, but there is expected that it may again reduce for 2022 student. So this is again, please be focused that you have to work on the reduced syllabus. Fine. So logic is having around 3 questions, matrices is having 2. See, these are the numbers which you can take a screenshot or something like that, but the important is trying to make a correlation. Okay? I am just trying to make a correlation. Trigonometric function 12 standard 4 question, trigonometric 11 standard 2 question. And we know that trigonometric 11 standard, that compound angle and transformation rule, half angle, etc. All this is very important to crack the questions of derivative and integration. Fine. So that means that this is, I consider to be the most important topic. 4 plus 2. There is a 6 question, 2 marks each. Mathematics 12 mark. Minimum 12 mark. Why I am saying minimum? Because if you add up differential equation, continuity, you are maybe sometimes limit and derivative, integration, indefinite, definite integration, application of derivative, application of integration. So it's I think it may go beyond 10 questions. So trigonometry, crux. Fine.
pair of straight line 2, vector and 3D line and plane. So this year 2021 it has little change in the syllabus, so I clubbed it together because I observed that sometimes vector and 3D 6 questions asked, line and plane 2 questions, sometimes 5 plus 3 4 plus 4, so that's why I clubbed it. The total combination of all this chapter is 8. Fine. LPP is a bacha chapter. I will give you the strategy, the study strategy. So it will hardly take an hour's time. LPP will hardly take an hour's time. It's again MCQ. So LPP MCQ. Fine. 2 questions. So very limited MCQ. Very limited MCQ. You can just go through that. Yeah. Differentiation 3, application of derivative 3, indefinite integration 3, definite integration 2, application of integration 1 and differential equation 3. याद होगा मैंने बोला था जिस किसी ने आपको कैलकुलस पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, उसके चरण धो के पी लो, बिकॉज सी 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 2 11 12 plus 3 15. मैंने उस समय 15 बोला था, 15 to 20. ये एक टेंटेटिव अप्रोच है. 15 यहाँ पर आया है, लेकिन ये और इंक्रीज हो सकता है बिकॉज मैंने कैलकुलस बोला था. देखो कैलकुलस यहाँ भी है 2 मार्क. सो 15 plus 2 17. एंड फंक्शंस भी कैलकुलस का पार्ट रहता है. एक्चुअली ये सेट्स एंड फंक्शन है, बट ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट ईयर 2020 में सेट्स को तो उड़ा ही दिया नहीं हमने. ठीक है, तो फंक्शंस पे 2 तो हो गए ना. 15 plus 2 plus 2, तो अराउंड ये हो ही गए 19-20. तो बस बिल्कुल कैलकुलस धो लो. तो अगर सपोज उसमें हमने इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री ऐड कर लिया, सो बॉस 4 plus 2 6. नाउ मेरे पास डिलीटेड सिलेबस जो है उसका थोड़ा सा डिटेल है. तो अगर हम देखेंगे तो देखो मैथमेटिकल लॉजिक कितना छोटा हो गया. सबसे गंदा रहता है मैथमेटिकल लॉजिक में वो क्या नाम है उसका, स्विच सर्किट. ठीक है, स्विच सर्किट के डायग्राम एंड ऑल दैट वो कैंसिल हो चुका है. ड्युअलिटी कैंसिल हो चुका है. तो अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है. मतलब ये भी अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है, अगर जो भी हमको करना है उसके ऊपर. ठीक है, उसके बाद में मेट्राइसिस में, मेट्राइसिस का एक बता देता हूँ. मेट्राइसिस इज समथिंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू डू इन बोर्ड एंड इन CET. CET द क्वेश्चन इज बेस्ड मोस्टली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसिस. प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ मेट्राइसिस जो है उसको अच्छे से कर लेना. और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इनवर्स का एक क्वेश्चन आता ही है, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, एक इनवर्स का आएगा ही आएगा. अब उसमें कैसा है, वो रेड्यूस थ्योरम वगैरह कैंसिल हुई है डिलीटेड सिलेबस में, लेकिन वो हम वैसे भी यूज़ नहीं करते. वो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा. सीधे ऑप्शन से देखना. सी मेक अ यूज़ ऑफ ऑप्शन, मेक अ यूज़ ऑफ ऑप्शन. मैं हमेशा बच्चों को बोलते रहता हूँ कि ऑप्शन इसीलिए दिए रहते हैं कि आप उसका यूज़ करो और कम से कम समय में आंसर्स निकालो. ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, सामने तो 4 ऑप्शन में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा. तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, तो वो वैसे भी उन्होंने हटा दिया है. तो मैट्रिसेस में कन्फर्म है, एक कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह का दे सकते हैं और दूसरा देंगे इनवर्स का. फाइन. उसके बाद अगर हम देखते हैं, सी दिस इज वेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये चैप्टर ही आधा कर दिया, ये चैप्टर ही आधा कर दिया. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी जनरल सॉल्यूशन उड़ा दिया, थ्योरम उड़ा दिया, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एंड देन प्रूफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब तो उड़ा दिया. तो ये चैप्टर ही आधा हो गया. तो सोचो जो लास्ट ईयर पूरा चैप्टर था या उसके पहले पूरा चैप्टर था, at that time they are asking 4 questions from that big chapter. Now it's a half chapter and they are asking 4 questions. Sure short है, क्वेश्चन बैंक कर डालो, उसके पीछे के MCQs कर डालो, और हाँ थोड़ा सा वर्किंग हार्ड बता रहा हूँ मैं, PYQs कर डालो. वर्किंग हार्ड क्यों? क्योंकि PYQs में अब सर्च करना पड़ेगा ना कि यार ये कट गया, इसको नहीं करना है. तो ये मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि उतनी वर्किंग आई होप हो गई होगी. तो PYQs के जो लिमिटेड है वो करो और रिपीट होते हैं, मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद. फाइन. ये देखो, सोचो मैं थोड़ा सा अगर एक ऑब्जर्वेशन करूँ, ये अराउंड 20 हमारे वहाँ बने थे कैलकुलस कंप्लीट, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्री और ये 8. सो 8 plus 6 14 plus 20 34 क्वेश्चन, 2 मार्क्स की 68 मार्क. 68 मार्क आउट ऑफ 100 ऑन मोटा मोटी
I can say not small. Calculus is a very big topic. Trigonometry is again a big topic, and the third one is the vector, complete vector, 3D and vector. ये 3 चैप्टर अगर कर लेते हो, 3 टॉपिक कर लेते हो बड़े बड़े, तो 70 मार्क अप टू 7, चलो 65 पकड़ो यार, होना ही होना है। मैथ्स बड़ा सेट है एकदम, और देखो लकीली इंजीनियरिंग एंट्रेंस में मैथ्स का ही वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद और क्या डिलीट हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिलीट हुआ है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बचता है, ट्वाइस एच एक्स वाई, ठीक है, वो वाला जो रिलेशन है, तो वो हट गया है, तो या 2 क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन बनता था, अब लिमिटेड हो गया कि अब जो रहेगा 2 क्वेश्चन दूसरी जगह से मिलेंगे, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड फॉर यू गाइज। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड वेक्टर्स में भी काफ़ी कुछ कचा है, प्रूफ तो वैसे भी आना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक टाइम कंज्यूम करता है, वो कट चुका है। देन तो लाइन एंड प्लेन में एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, और कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, ये सब कट चुका है। इनफैक्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, वो भी कट चुका है, ठीक है, वो मॉड के अंदर लेते थे, ठीक है, 2 फॉर्म रहते थे, तो वेक्टर फॉर्म और दूसरा हमारा कन्वेंशनल फॉर्म, तो वो भी कट चुका है। हेलो, एलपीपी में भी कट चुका है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड वर्ड प्रॉब्लम। अब फिर बचेगा क्या, एलपीपी तो सही में ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सबसे पहले तो सर्च कर लो एलपीपी का क्वेश्चन कहाँ पर है, 2 मार्क। देखो कटा क्या है उन्होंने, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड वर्ड प्रॉब्लम, यही काट दिया, तो फिर अब बचा ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीवाईक्यूज भी चेक करोगे, या सपोज क्वेश्चन बैंक भी चेक करोगे, या इसके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज चेक करोगे, तो हार्डली ये 25-30 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, मतलब आधे घंटे का जॉब है, ये आधे घंटे का जॉब है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तो हाँ, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करता है, कैलकुलस में स्कोप भी नहीं है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ वो nth वाला। हाँ, एओडी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एओडी में काफ़ी कुछ कर गया है, ठीक है। पहली बात तो अगर कोई रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा वगैरह रेफर करता होगा, तो जो रेट के क्वेश्चन है वो एओडी में एचएससी बोर्ड में नहीं आते हैं, तो वो वहीं से हट गए। उसके बाद में देखो अप्रोक्सीमेशन कट गया, रोल्स थ्योरम कट गया, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कट गया, क्या बचा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, श्योर शॉर्ट, कितने, 3 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन हट गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, आना ही आना, छोटे छोटे टॉपिक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। थोड़ा सा अगर अच्छी प्रैक्टिस करना है तो यू कैन रेफर आर.डी. शर्मा ऑल्सो, इट्स योर चॉइस, बट नॉट रिकमेंडेड, फाइन। देन इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑप्शन तो आएगा भी नहीं एमसीक्यू में। रिडक्शन फार्मूला कट गया, हाँ, रिडक्शन फार्मूला एंड में थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना ब्लैक हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स जो भी बोल रहे हैं, कहाँ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन पे 3 क्वेश्चन है, मैंने 2020 का पेपर देखा, मैं पागल हो गया, वो देख के पागल हो गया, उसका मैं डिस्कशन थोड़ी देर बाद करता हूँ। 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज है, बिकॉज 2020 में बहुत सेट्स आए थे, तो मैंने एवरेज किया, 70+ क्वेश्चन है, 70+ क्वेश्चन है, अगर मैं सबके एडिशन करता हूँ सभी पेपर की, मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, तो माइंड बॉगलिंग, 5 ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन, पता नहीं है 3 आ रहे हैं यहाँ पे पिछले 5 साल के इसमें, तो पता नहीं पिछले साल उनको इतना प्यार हो गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से, गॉड नोस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में तो बता दिया था मैंने कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हट गया है, तो बचा क्या, डिस्क्रीट, और उसमें भी क्या, वो पीएमएफ सीडीएफ, मतलब क्या ही हुआ है, ठीक है, और उधर वो मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, और वो बाइनोमियल तो काफ़ी ईजी है, बाइनोमियल तो काफ़ी ईजी है। कितने हैं भाई, 1+2, तो देखो इसमें कटा है, इसमें कुछ नहीं कटा है, इसमें कटा है, तो एक पोर्शन ही पूरा कट गया। वो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो कंटिन्यूस कट ही गया, तो पूरे दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्क्रीट पर आ गए विषय का, सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सो इट्स अ टेंटेटिव अप्रोच ऑफ लास्ट 5 years। यहाँ देखो यार, स्ट्रेट लाइन एक क्वेश्चन, चॉइस इज योर्स थी, मैं यही बोल रहा हूँ कि मे बी शायद किसी को रॉन्ग लगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैथ्स बना लो, सीएटी में मैथ्स बना लो, तुम्हारा परसेंटाइल बन जाएगा, ये फैक्ट है,
इस बात को समझ लो, प्रीवियस स्टूडेंट्स वगैरह के चेक कर लेना वगैरह, अभी मत वेस्ट करना अपना टाइम, शायद किया होगा तो, लेकिन सुन लेना, ठीक है। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैथ्स बना लिया, थोड़ा उधर कम ज़्यादा हुआ चलता है, लेकिन अगर मैथ्स बन गया तो ओवर। मैं कितने ऐसे इंसिडेंट्स दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिनका मैथ्स बन गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री लो आया, फिर भी उनका परसेंटाइल 98 तक के गया। सो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। कोनिक सेक्शन तो हो ही गया, सर्कल यहाँ पर है। प्रोबेबिलिटी के लिए ना थोड़ा सा वो पीसी करना पड़ेगा, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। और जिनका हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी ये भी हाथ का मार के बहुत टफ नहीं आने वाला। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये जो 11 के चैप्टर है ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो पहले के है वही घोट लो, या सपोज क्वेश्चन बैंक में आते हैं, या सपोज और कोई रेफरेंस बुक में होंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है। फंक्शन सेट्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, टोटल 14 पेपर में, ठीक है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ने तो इधर से इधर आ चुका है ना, पहले 12th में था, अब इधर आ चुका है, तो थोड़ा सा दिक्कत गई मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में, मतलब कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या आए थे वो करने में, बट ठीक है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स, एल हॉस्पिटल रूल, डोंट से हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल, डेरिवेटिव हाथ में रखो, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, मतलब चैप्टर बड़ा है, एक क्वेश्चन का वेट है, और अच्छा चैप्टर है, मतलब बना लो यार, मुझे ऐसा लगता है बना लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी देखेंगे और कैसे क्या पढ़ाई करना है तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर है पिछले 5 साल का सीईटी का, इसके बियॉन्ड मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, बिकॉज यू नो आई टोल्ड 50 डेज, ठीक है। 45 to 50 डेज अभी भी समझ के चलो, आज से 27 से, मे बी वीडियो कल अपलोड हो पाएगा 28 को, बट समझ के चलो कि 50 डेज है, फाइन। सो जस्ट द कंटिन्यूशन पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शूटिंग जस्ट नेक्स्ट टू दिस, वेयर यू विल गेट द कंप्लीट अप्रोच फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू।